Hi guys, it's around 4:30 out here. It's 35 degrees and the electricity is gone off since 3 o'clock and it's only going to come at 10 o'clock. Am I having fun? Yes, I'm having fun. Today I just didn't do anything. I went to the small garden because I had showered on my hair, so washed my hair with this Sunsilk argan oil, rosemary, some liquidy kind of new flavor of Sunsilk. It may not be new, and it is not that old also. I don't know if you all know about this flavor of this shampoo. I had last Sunday I had when I had done my hair spa. I had washed it with this shampoo, and again I had washed it with this shampoo. I found this shampoo to be like an oily kind of a thing. It's like a moisturizer to the hair. It is not like it's not a cleanser, right? So it gives that oily shine. See, so it gives that oily shine. And I covered my hair with this लिनिन और कॉटन का कपड़ा होता है ना, वो साउथ इंडिया में वो जिससे बाल धो ये बांधते हैं. सो आई हैड डन दैट. So after that, I went to Kantileshwari, which is an Udpi restaurant just opposite the small garden, and had rava masala dosa. There were kajus and raisins in it. Yeah, there are restaurants who put that, but इसने lavishly डाला था because there was nobody in the restaurant. मतलब एक के दुक्के होंगे, and I reached there at around 9:30. So because yesterday was Holi, he was saying इतना busy था मैडम, इतना busy था खचा खच. So Saturday was slow. So the chef made quite a good rava masala dosa. I didn't like their sambar. पतला था, उन लोग पतला ही कर दे because people don't appreciate sambar. The real good sambar which I had was at Bharti restaurant. That was a real great sambar. इनका पतला पतला टिपिकल सांबर था. टिपिकल उड़पी रेस्टोरेंट का जो रेड कलर का सांबर रहता है, रेड कलर. कुछ रेस्टोरेंट्स में ऑरेंज कलर का रहता है, कुछ रेस्टोरेंट्स में रेड कलर का रहता है. सो ठीक है, आई हैड दैट आफ्टर हैविंग माई दिस मील. आई डिडंट हैव टी और कॉफ़ी एंड आई इन्जॉयड इट एवरी बिट, क्योंकि मैंने 2 दिन से सेमी फास्ट रखा था. Didn't touch my non-veg, didn't do any of those things. And see the glow on my face. I didn't even wash I should have at least put some water or something on my face. I was just lying on the bed and watching some content machine, if you all are aware about it. I used to watch that earlier. तो उसके binge watching किया थोड़ा बहुत, relaxed my mind. And this is my favorite nightwear. I like, not nightwear, this is my favorite housewear. I just love this color. This is my mom's gift. My last, I think this is the last 2023 का हैप्पी बर्थडे पे उसने मुझे गिफ्ट दिया था ये. And I remember what a terrible dinner she cooked. And I told her कि तुझे आज ही का दिन मिला to make a terrible dinner. And I had not had dinner. मैंने चर्च में जाके रंगोली बनाई थी, मुझे याद है, दिवाली का दिन था. This is her gift. I'm very upset on that day. I was upset on my birthday day with her. Very upset with her. My lips look as though I have put lipstick, but it's not so. Sometimes they look very dark. Sometimes they look dry. And today they just look pinkish. I don't know what color. Sometimes you don't have to wash your face 120 times. You can just splash some water on your face and you'll feel better. I had a good sleep. I'm relaxed. You must be thinking, why am I rambling all these things? ये तो mundane things है.
When you're relaxed in your head, this is how you look. See my hair, the texture of my hair. I washed it after almost a week. Na? Last time I washed it when I did a hair spa. If you can see it. ऐसा नहीं that I don't have white hair. I have white hair, but then now they are becoming a little more under control because of my आंवला consumption. And मैं इतना सारा, sometimes you need to go slow with your diet, especially in summer season. समर सीजन में तुम फ्रूट्स खाओ, बहुत सारा पानी पियो, लिक्विड बेस्ड चीज़ें करो. आई एम गोइंग टू स्केड्यूल अ डाइट फॉर मी फॉर समर. I know what works for me, what doesn't. My feet have become very, touchwood have become stronger, my muscle mass and all that. पहले ऐसे सब जॉली जली की तरह होता था. यहाँ पे है थोड़ा सा जॉली जली. I just have to maintain this loose skin. We women are obsessed with beauty, but beauty is natural and free. You don't have to run behind it, and it is ideally better to change your brands. I'm not saying make drastic changes. Just as Sunsilk mein I used to always keep a yellow color ka shampoo. Now they have not made it egg based, but I used to prefer that if I'm using Sunsilk. Then I tried the pink one. Sunsilk is a brand which I keep in the backup. I might not use it regularly, but I use it as a backup. Then I'll always have my Imami ka shampoo, my Dabur ka shampoo. Then I have my local, मेरा favorite जो होता है Vasu herbal shampoo, which I haven't used for a very very long time. Then in every, I won't say every month, I would say twice, every 2 months I will use a detoxifying shampoo, or once a month depending how the weather is and what is the condition of my hair. That is OGX ka charcoal shampoo. Yes, that is a detoxifying. It takes off all the minerals and all the residue from the hair. So I do that depending. If I used to do henna, I had to do that. Now from past 2.5 months, I haven't used henna. So I will start using henna every 15 days. Maybe because it's summer, maybe I should be using every week. Depends. I have no clue how I'll do it. See my face. सनलाइट है, पानी पीने का. आज मैंने पानी पिया क्या, इतना ज़्यादा नहीं. जस्ट रिलैक्स्ड. मन नहीं करता है कुछ भी खाना खाने का, कुछ भी नहीं. इतनी गर्मी में आई डोंट नो हाउ पीपल ईट एनीथिंग. My vegetarian food I was very happy. मेरी चटनी, see the chutney of भारती was good, but भारती का भी अच्छा था. And वो लेडी जो बनाती है ना, वो पूर्ति सुपर घर का, oh that is amazing, out of this world. Those idlis and those chutneys, I never take सांबर from her. उसका ऑरेंजिश कलर का सांबर होता है. उसका सांबर भी अच्छा ही है, but I'm not too keen about the सांबर. अच्छा ही रहता है उसका सांबर भी, बट यू शुड टेक द फर्स्ट बैच. वो 2 बैचेस में बनाते हैं. तो जो फर्स्ट बैच होता है ना, जब वो बाकड़ा लगा के 7 बजे शुरू करते हैं, तो अगर तुम इडली बिटवीन 7 o'clock 7 to 7:30 8:30 के पहले खाते हो ना, वो फर्स्ट बैच होता है. फिर वो लोग रीफिल करते हैं क्योंकि वो 10:30 तक खड़े रहते ना, तो उनका 8:30 बजे के बाद और एक रीफिल बनता है. सो एनीथिंग इफ़ यू ईट बिफोर दैट बिटवीन 7 and 8, 7:30 अप्रॉक्सीमेटली, तो यू विल गेट द फ्रेशेस्ट बैच. इडलीज भी फर्स्ट क्लास रहते हैं. चटनीज, उसका टमेटो चटनी, उसका वो रेड चटनी, और वाइट चटनी इज़ वेरी नाइस. 30 रुपीज़ में 4 नाइस क्यूट इडली. समडे आई टेक अ फोटोग्राफ ऑफ इट. ऐसा तुम लोग को खाना मिलता है ना, मैं आँख बंद करके बोलती हूँ ना, खड़े रह के भी खाने की शर्म मत करो, क्योंकि इडलीज आर स्टीम्ड फूड. ओके,
इडलीज आर नरिशिंग, इट इज़ फर्मेंटेड फूड. कभी भी मुंह मत बनाओ. अगर तुम्हें वड़ा खाना है और तुम्हें डीप फ्राइड फूड खाना है और इडली खाना है, उसको बोर मत सोचो. सांभर नहीं खाना है तो मत लो. डोंट वेस्ट फूड. टेल देम मुझे चटनी दे दो, और चटनी मांगने में शर्म मत करो. एंड दे आर वेरी स्वीट, रिफिल करके देते हैं, उनको पता है. चटनी तो है. Another thing I like about JM Idli is that they don't charge you extra for the chutney. They'll keep refilling it. I just loved the idlis eating. मैंने वड़ा भी खाया है. Well, if I'm going to JM Idlis, it will always be steamed idlis. 3 fluffy is idlis and their chutney. And they start at 8 o'clock. So when they start at 8 o'clock, the first batch, that's the time when they open their shop, and you go inside. It's better to go early because Sunday होता है. एंड क्वालिटी फूड के लिए कुछ अच्छे प्राइस देने में, आई डोंट थिंक $40 फॉर 3 इडलीज इज़ अ बैड आइडिया. सो बिकॉज आई हैव ईटन फ्रॉम द बाकड़ा एंड इट वाज अ टेरेबल एक्सपीरियंस. ना मैंने दिस फीमेल का मैंने खाया, वो एक अलग एक्सपीरियंस था. इतने मीडियम साइज इडलीज थे बट दे वर रियली गुड, वेल मेड. सो डोंट फील शाई बीइंग अ फूडी. कभी कभी ये जो होते हैं इस बाकड़े का जो घर से बना के लाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड. इफ़ यू कैन ईट गुड अच्छे का. इफ़ यू आर गोइंग टू साउथ इंडियन उडुपी रेस्टोरेंट, आई वुड रिकमेंड यू ऑल ईटिंग मसाला डोसा से रवा मसाला डोसा ऑर्डर करो, या बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट. ओके, मसाला डोसा तो तुम खाते रहते हो, उसका क्वांटिटी सब्ज़ी ज़्यादा रहती है अंदर. इनफैक्ट आई हैड इट विद पाव क्योंकि इतनी सब्ज़ी बची थी. आई डिडंट वांटेड टू हैव इट विद द डोसा. आई कुड हैव हैड इट विद द चपाती. चपाती बाहर से बना के मंगा के लेके आते हैं उन लोग. आई सॉ दैट. तभी चपाती आए थे उनके. मैं कंतिलेश्वरी इतना नज़दीक है, मैं उसमें भी नहीं गई हूँ. कैन यू इमेजिन, वो रेस्टोरेंट में भी नहीं गई हूँ, विच इज़ ऑपोजिट स्मॉल गार्डन. जस्ट लास्ट ईयर गई मैं बैठ के वहाँ पे. मैंने उसल बटाटा वड़ा खाया था एंड कटिंग चाय पी थी फॉर $10. उसका खाना भी काफ़ी अच्छा रहता है. उसका वड़ा बहुत ही अच्छा था, बटाटा वड़ा फर्स्ट क्लास था. साबुदाना खिचड़ी, द वन ऑफ द आई कुड क्लोज माई आइज एंड से इफ़ आई वांट टू ईट फूड वुड बी सेवन हिल्स हॉस्पिटल का जो कैफेटेरिया है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. उसका मिसल पाव वॉज फैब्यूलस. उस दिन मैंने क्या खाया था, मसाला डोसा खाया था. और जिनके साथ में सेवन हिल्स में उनका हैप्पी बर्थडे के लिए, आज वो मुझे कंतलेश्वरी में मिले. इज़ लाइक आई टोल्ड हिम आई जस्ट लिव हियर. ही सेइंग आई डोंट सी यू एट द पॉन्ड पार्क. आई सेड एक्चुअली मेरी टाइमिंग्स ना, इन लोग क्या करते हैं, ये जो है ये जिन्होंने हमें ट्रीट दिया था, वो टोनी अंकल के ग्रुप के थे, ये भी पॉन्ड पार्क के ही मेंबर है. लेकिन ये सारे वही ग्रुप होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये आते, ये मुझे लगता है ही टेक्स हिज कार एंड ही टेक्स अ कपल ऑफ पीपल जो भी उनके साथ होते हैं, एंड दे गो टू दैट आरे में जाते हैं 5 किलोमीटर का ट्रैक करके. वहाँ से फिर 7:30 बजे दे कम हियर. फिर यहाँ पर भी थोड़ा राउंड मार के, आई डोंट थिंक राउंड मारते हैं, गप्पे लड़ाने के लिए आते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ उनके एक्वेंटेंसेस और फ्रेंड्स रहते, तो इनके साथ फिर वो चले जाते हैं. बिकॉज ही स्टेज इन मरोल, दिस आगे मरोल नाका नहीं, मरोल बाज़ार साइड में रहते हैं, तो प्रॉपर वहाँ पे रहते हैं. तो वो मुझे यहाँ मिले. ही सेइंग नो, आई केम टू मीट समवन, वी हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर, सो वी. तो ऐसे, तो ही इज़ क्वाइट रेगुलर गोइंग टू आरे. वहाँ का 5 किलोमीटर ट्रैक करते बिकॉज दैट इज़ लाइक अ हिल, राइट. ही गोज़ देयर. तो आई सॉ हिम आफ्टर 6 months. No, I saw him, when did I last see him? Some 2-3 months ago, and वो मेरे सामने थे, तो I could not register. I said, I saw you 2-3 months ago, but I didn't recollect. I could not recollect. तो he told me I don't see you because तभी मैं 7:30 बजे जाती थी. I used to do my church visit and then go to the pond park. So that's how they know me. So he also told me I didn't see you. Because I don't go at 6, I don't go at 7:30, I go at 6:45 या 7 o'clock के पहले जाती थी. 7 o'clock 6
6:50 या 6:45 से लेके 7:10 7:15 तक होती हूँ, हाफ एन आवर होती हूँ मैं नाइट. Even if I touch base, I just do 10 minutes of it in the pond park and then do my church visit. I hope I brought some freshness to my content. See my face, very relaxed, very happy. You know, my that spa was so deep in my the moisturizer ना, तो अभी भी वो चिपाहट है मेरे बालों में कहीं तो भी. If you don't want to dry your hair, then this is a better shampoo. It doesn't make your hair very dry. And can you all see any difference in my hair? वो एक नित्यानंदम चैनल में दिख रही हूँ. सी आई वॉच अ लॉट ऑफ दीज आयुर्वेदिक थिंग्स एंड आई वॉच अ लॉट ऑफ दीज नेचुरल होलिस्टिक चैनल्स ऑल्सो. तो ये काफ़ी तुम्हें मिसलीड करेंगे. एक टाइम पे बोलेंगे आंवला ऐसे खा लो, देन दे सेड उसको प्रोसेस करके खा लो. भाई वॉट एवर सूट्स योर बॉडी. आई हैव बीन ईटिंग आंवला फॉर मैनी ईयर्स. ऐसे नहीं कि ओवरनाइट मेरे बाल काले हो जाएंगे. देर आर सेवरल फैक्टर्स टू इट. Yes, I get good quality hair and good quality skin because of my avla consumption, because of my vitamin C. Early morning, if I'm having lemon, I'm biting the lemon rids, okay? Lemon water, then avla, then orange. If I'm having, this is my standard. This is my vitamin C every single day. If there is no avla, then there is lemon water. If there's no lemon water, then there's avla and orange. So there's always vitamin C in my diet. Don't demonize tea and coffee. When people demonize tea and coffee, enjoy your tea and coffee sometimes with milk. But don't make it an habit. Don't drink so much of sugary. अगर मुझे कोई कॉफ़ी भी देता है with milk and there's no sugar to it, I'll be like gladly having it. मैं खुद ही बोलूँगी इतना sugar मत डालो मेरे कॉफ़ी में. I don't mind having a small little bit of sugar just to give the taste. And if I'm having with the chocolate cookie, then I don't need that sugar. So don't demonize. Don't look down upon your tea and coffee. Or your bread. अभी bread खाना है तो खा लो. But don't make it an habit. Every single day bread, every single day bread. ऐसा मत करो. रोटियाँ, अभी रोटियाँ पचाने में बहुत टाइम लगता है. गेहूँ की रोटियाँ होती है वो, तो टाइम लगता है उसको पचने के लिए. तुम धबाधब खाओगे तो. अगर घी लगा के खाना है तो समर सीज़न में तो मोटा तो बन जाओगे ना, बिकॉज स्लो डाइजेशन होता है. घी की चीज़ें तुम्हें विंटर में खानी चाहिए. तभी मैं चपाती खाती थी, पराठे बनाती थी. भाई मज़े भी आते थे किचन में बैठ के बनाने के लिए. अभी किचन में जाने के भी लिए मुझे कुछ तो लगता है. I enjoyed my dosa. Their chutney was average. And their sambar was not okay. वो उसको राइस के साथ खाते ना, तो राइस एंड पिकल के साथ बड़ा मज़ा आता. You liked my hair? नेक्स्ट टाइम आई शो यू द हेयर जिससे मैं अपने बाल, ये मैंने साउथ से लाया. मतलब मैं मेरी आंटी के घर पे था, मासी के घर पे. शी हैड गिवन दिस टू मी. उसने मुझे 2 चीज़ें दी थी. एक लिनन या जूट का कुछ, तो उसने 400 रुपये का एक मुझे दिया था गिफ्ट, और एक ये है. यू शुड टाई इट टू योर हेयर. वो ना थोड़ा सा, जब हमारे बाल ठंडे होते हैं वो उसे डालने से वो अच्छा हो जाते हैं.
नेचुरली सूखते हैं. नेवर ब्लो ड्राई माई हेयर, नेवर एवर यूज एनीथिंग. In fact, I'm looking younger is because of many reasons. I used to be highly aggressive person and अभी भी मैं हूँ, but वो बहुत टोन डाउन हूँ मैं अभी. आई हैव गिवन अप इन द सेंस मैं अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करने लगी हूँ. आई एम फार मोर रिलैक्स्ड. एंड मैंने अपने रूटीन्स भी चेंज किए हैं. जैसे आई गो टू नाना नानी पार्क, far more relaxing. I do barefoot walking, I do grass walking. I have included carrots in my diet, capsicum in my diet since last Feb. ऐसा नहीं कि मैं एवरीडे खाती हूँ. यू शुड नॉट बी लाइक रनिंग. आई डोंट ईट नट्स, जबकि मेरे घर में नट्स है, आमंड्स है, काजू है, पता नहीं क्या पिस्ता भी रहेगा. आई हैव नो क्लू क्या क्या रहेगा. किमिया के डेट्स ला के रखे थे, वो भी मैंने खाए नहीं. तिल की चिक्की है, फ्लैक्सीड की चिक्की है, हेल्थ के नाम पे सब कुछ है. बटर है, चीज़ है, क्यूब चीज़ है. सीरियसली सब कुछ होने के बावजूद भी ना कभी कभी मन नहीं करता है कुछ भी खाने का. द लेस इज मोर. स्टिक टू 1 or 2 meals a day. when you just have a good breakfast and have a lunch. देन धीरे धीरे करके शाम को सूप पीने की आदत डालनी चाहिए. जैसे गाजर एंड बीटरूट का सूप. I'm going to keep my summer diet. I'm going to formulate a summer diet for me. What I had done in winters, I enjoyed my food. मैंने सूखा खाना इतना enjoy किया. मैंने अपने सैलड्स enjoy किए. मैंने अपना कॉफ़ी, टी, सब कुछ enjoy किया. I think winters is the best time to enjoy your relax होने के लिए. I enjoyed my winters like anything. October, November, December, January, Feb भी मैंने काफ़ी enjoy किया. But जैसे March आया ना, it became too hot. It was hot in Feb only, but वो March में it's unbearable. See, this is my natural. This is how I look. जब लोग बोलते हैं मेकअप मीन्स नो काजल एंड नो लिपस्टिक, समटाइम्स आई लाइक टू बी लाइक दिस एंड समटाइम्स आई जस्ट वांट टू बी लेड बैक. आई डोंट वांट टू be Miss Perfect all the time. I'm giving live reviews of the products I use or the foods which I eat. Being a South Indian, I am very much मेरे वो डोसा कल्चर तो रहता ही है by default. It's by default. I was always fond of पंजाबी फूड. पता नहीं मुझे ना पंजाबी खाना इतना पसंद आता था ना. मुझे पनीर, हर चीज़ में पनीर, पराठे. आई रिमेंबर लास्ट मंथ मुझे पिकल, जनवरी और फेब में मुझे इतना पिकल मैंने खाया होगा. फुल पैकेट्स ऑफ पिकल मैंने ख़त्म किए. पूरे बाटली मैंने ख़त्म किए पिकल के. आई जस्ट वॉन्टेड टू ईट पिकल. पिकल विद खाकरा, पिकल विद माई भेल, पिकल. आई जस्ट वॉन्टेड टू ईट. इवन जब मैं पाजी के ढाबे में जाती ना, पिकल के साथ ही खाती थी सारी चीज़ें. इतना पिकल खाने का मन करता था. Actually, there's happy hours. I think there's a 40% discount on the total bill for food and drinks. So I will try this heritage that time. I'll try. क्योंकि उनकी prices बहुत ज़्यादा steep है. But I will try. डैरल सर ने मेरे से
bet रखा है. He's saying your ex is coming back. I was like laughing away to glory. Uh, okay, I just had a word with him and he told me one thing, he's coming back. I was like laughing, you know why I was laughing? Because he didn't have to tell me this. I knew that myself that he's coming back. He's saying challenge, he's coming back. I said, ठीक है. He's coming back. I know that he's coming back. And he's coming back very soon. That too also I know that. Then he told me one thing, if you accept, don't act too smart of yourself that you want to show your pride or something and teach him a lesson. If that's the thing, then don't go for it. If you really are interested, then go for it. Saying don't think so arrogant about yourself and oh, see, he's come back at my feet kind of a thing. But 100% he's coming back. He just said, I had an intuition that he's coming back. मैं इतना कॉन्फिडेंस कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई आई शुड नॉट बी स्माइलिंग ऑन दिस. मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब ठीक ठाक होना होता है दिस मैन मेसेज अप एंड ही हैज़ मेस्ड इट अप सो बैडली. तो वापस आके हम लोग क्या बातें करेंगे, क्या सफाई देनी है उसको. मैंने सोचना ही बंद कर दिया है. एंड जैसे मैं बोलती हूँ ना, जब मैं उसका सोचना बंद कर देती हूँ या समथिंग, या तो उसके समथिंग कनेक्टेड टू हिम कम्स इन फ्रंट ऑफ मी. लिटरली इट इज़ लाइक इट्स ऑन इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने बोला क्या, भूलने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिलता है कि मैं भूल जाऊँ किसी भी तरह के तरीके से. When did I last see his face and I literally want to punch his face? That was December. Literally like na smash his face and smash that car of his. या तो इसकी गाड़ी या तो इसका थोबड़ा स्मैश करना है मुझे. इतना गुस्सा आया था. Anyway. You know, the fact being, as I said, it's subconscious or consciously, I will not lie. As a woman, let me tell you that after even my breakup, after मुझे वो words उसके मुंह से सुनने थे. Okay, I have nothing to do with you. ये सुनने के बावजूद भी there's something stubborn there was something in my heart, like even though he broke my heart, I wanted to see his face. It's a fact. And it was very subconscious. It's not that I want to see him or I knew his timings. ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just randomly because we stay nearby. I won't say nearby भी तो नहीं बोल सकते. But I just bump into him. I can just see his face. So it's a very weird situation for me. It's just a weird situation for me. So मैं उसको तभी वो after the breakup I used to see his face couple of times. और दिन मुझे ध्यान में आ गया कि मे बी बिकॉज मैं सैटरडे को जाती हूँ चर्च को, तो इवनिंग को जाती हूँ फॉर द एंटायर रिचुअल, तो इसके वजह से भी हो सकता है. और वो क्या होता है ना, भूलते भूलते अचानक मैं उसका फेस देखती हूँ
and अचानक he would be doing something stupid like chit chatting and flirting with the supposedly flirting with the girls, pretending to standing such a way like where I can see him and he's like pretending to ignore me or things like that. तो मैं मैं ये देखती थी कि शांति मैं ये अपने आप के लिए कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉन्शियसली हो रहा है सबकॉन्शियसली हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. तो देन नवंबर वाज द लास्ट टाइम आई वेंट फॉर दोज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 months. या 5 months आई यूज्ड टू गो. रेनी सीजन्स भी थे, अच्छा भी लगता था शाम को जाने के लिए. और मैं शाम को भी चर्च में जाती थी. मॉर्निंग में नहीं जाती थी, शाम को जाती थी छाता लेके वहाँ पे. कभी कभी बेंच पे भी बैठी रहती थी. तो आई रिमेंबर ऑल दोज रेनी सीजन्स एंड विंटर सीजन. ये अक्टूबर नवंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 months इवनिंग आई यूज्ड टू गो. एंड संडे इवनिंग ऑल्सो आई यूज टू गो. वहाँ पे प्रेस संडे मास होता था, फिर भी आई यूज टू गो. इतनी रश रहती थी फिर भी आई यूज टू गो एंड सिट ऑन दैट पर्टिकुलर बेंच. तो मैं ऐसी थी. तो नवंबर ऑनवर्ड से मैंने कट डाउन किया फिर शाम को जाना. और अगर शाम को भी जाती थी तो देन आई यूज टू गो एट 8 o'clock 8:30 जस्ट फॉर 2 minute विजिट्स टू द प्रेयर रूम. और बेंच पे 2 minute बैठ लिया और निकल आती थी. 8:30 वेन एवर आई एम गोइंग टू द ग्रोसरी शॉपिंग या लोकली ऐसे वॉक पे तो वो कुछ ना कुछ मुझे ख़रीदना ही होता था शाम को. तो शाम के मार्केट में से तो मैं जाती थी वैसे. एंड देन आई यूज्ड टू पिक स्टफ राइट. एंड आई यूज्ड टू गो टू द चर्च. मेरी एक हैबिट है, मैं नो मैटर इफ आई एम पासिंग टू दैट विसिनिटी आई विल ऑलवेज ड्रॉप इन. मैं ड्रॉप करके आ जाती थी, ड्रॉप इन करके दर्शन करके आ जाती थी. एंड so my timings changed. November, December, January, February and March. Now this 4th month, so it is completely changed. My schedule is completely changed. So people don't actually get to see me very regularly. अगर जो मॉर्निंग में है वो भी मुझे सिर्फ एक ग्लांस एक ग्लिम्स देखते हैं. बिकॉज आई जस्ट गो फॉर अ विजिट एंड आई एम बैक. आई एम नॉट लिंगरिंग इन द कंपाउंड. आई एम नॉट चिट चैटिंग विद एनी बडी. सो जस्ट अ ग्लांस और अ ग्लिम्स. पहले क्या होता था, मैं एक्चुअली बैठ जाती थी बेंच पे. तो यू कैन हैव ऐसा हो जाता है, यू गेट वहाँ पे लोग टकरा जाते थे. यू हैव टू चिट चैट विद देम सपोजिडली. सो 4 months से मेरा स्केड्यूल चेंज हो गया. और पॉन्ड पार्क में भी मेरा स्केड्यूल चेंज हो गया. आई रिमेंबर इन द विंटर सीजन आई यूज्ड टू फर्स्ट अटेंड द चर्च एंड देन गो टू द पॉन्ड पार्क एट 7:30. तो मेरा स्केड्यूल पूरा चेंज हो चुका है. Now I visit the Nana Nani Park. After I go to my church visit, from there I go to Nana Nani Park, spend 20 minutes over there for my grass walking, barefoot walking. वहाँ पे I spend my half an hour. Then I take the shortcut sometimes or I take the long cut. मैं पीछे के रास्ते से आ सकती हूँ, चौल के रास्ते से. Within 5 minutes I can reach the small garden. तो 8 बजे मैं स्मॉल गार्डन में आ जाती थी. पहले मैं 7:30 को स्मॉल गार्डन में पहुँचती थी. Yeah, at around 7:35 I would be in small garden. So my schedule has changed. My timings have changed. So people don't even see me. ये जिन्होंने मुझे अक्टूबर में देखा था, इनको अभी भी मेरा schedule पता है because he takes 1 or 2 walks after 7:30. Eat fresh food. समर सीजन में हाईली रिकमेंडेड वेजिटेरियन फूड, हाईली रिकमेंडेड. स्पेशली स्टीम्ड अगर फूड है, हल्का हल्का सा खाना है, मेक इट 1 meal a day, मेक इट 2. बहुत सारे लिक्विड्स पीते रहो, ठंडा ही पीते रहो, वो अच्छा रहता है. फ्रिज का नहीं. इवन नाउ आई हैव रूम टेम्परेचर वाटर नो मैटर वॉट. आई डोंट हैव फिजी ड्रिंक्स. आई डोंट हैव कोल्ड ड्रिंक्स. जैसे मुझे प्यास लगी तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी, ऐसा नहीं. आई विल कैरी घर का रूम टेम्परेचर वाला पानी वेर एवर पॉसिबल इफ़ आई कैन, इफ़ इट इज़ पॉसिबल. और इफ़ आई एम आउटसाइड आई प्रेफरेबली हैव वाटर.
और आई माइट हैव समथिंग लाहौरी की शिकंजी. लाहौरी इज़ अ ब्रांड. उसकी शिकंजी या जीरा का वाटर पीऊँगी मैं. जीरा वाटर, अगर ठंडे में मुझे कुछ पीना है तो. जीरा सोडा वो करती हूँ मैं. सो गिव अप ऑन योर फिजी ड्रिंक्स. अगर तुम, एक आंटी आएगी बोलेगी पिज़्ज़ा खाने से यू आर एजिंग फास्टर. भाई नॉ, पिज़्ज़ा इज़ ऑल्सो मैदा. बर्गर में भी मैदा है, नूडल्स में भी मैदा. मैदा इज़ रिफाइंड राइट. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनती है. तुम्हारी मिठाइयाँ उसी से तो बनती है. सो खाना हर प्रकार का होता है. डोंट डिमोनाइज. तुम नहीं खाते हो, तुम मत खाओ, या मॉडरेशन में खाओ या खाओ ही मत. बट ऐसा तो होगा पॉसिबल नहीं है ना कि हर चीज़ में मैदा तो रहता ही है. तुम एक चीज़ को अवॉइड करोगे. अभी मैं बिस्किट्स खाती हूँ, फिर यहाँ पे मैं बैठ के ज्ञान देती रहूँ कि मैदा मत खाओ. विद माई हर्बल टी समटाइम्स व्हेन आई एम फास्टिंग, हाफ डे फास्टिंग रहता है, आई हैव माई बिस्किट्स. दैट डजंट मीन आई एवरी डे सिट एंड ईट माई बिस्किट्स, बट व्हेन आई वॉज फास्टिंग आई वॉज हैविंग बिस्किट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. बाल अच्छे हो गए मेरे. इन द मॉर्निंग आई वॉज लिटिल फीलिंग क्रैंकी. मैंने बोला मेरे बाल ऐसे कैसे लग रहे हैं करके. अभी अच्छे लग रहे हैं. डिटॉक्सिफाइंग शैम्पू. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पूरा गंदा गंदा होली के वजह से हर जगह गंदा गंदा बन गया. कितना पानी वेस्ट करते हैं. ऐसे तो समंदर में जाके नहा लो ना यार, वहाँ पे होली खेलो. दैट इज़ बेटर. और रंग भी लगाना है तो नेचुरल रंग लगा सकते हैं. हल्दी लगा सकते हैं या ऐसे कुछ लगा सकते हैं. नेचुरल कलर्स जिससे मज़ा भी आए ना. ये आर्टिफिशियल पेंट्स, वाई नॉट नेचुरल पेंट्स. मैं तो होली खेलूँगी, मैं तो बोलूँगी वाई नॉट हम होली खेले यार. बस खेलनी चाहिए. मुझे कोई मेहंदी रगड़ता है या कोई मुझे हल्दी रगड़ता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी. नेचुरल कलर्स. इंडिगो रगड़ता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी. यू नो माई मेहंदी का पाउडर, इसमें पानी डाल के रगड़ो मेरे चेहरे पे, नो प्रॉब्लम. रिमेंबर वंस आई पुट हिना डिज़ाइन ऑन माई हैंड. बड़ा मज़ा आया था. इट वॉज रेनी सीजन, समवेयर इन अगस्त और समथिंग. कोन देके मैंने कुछ अगली सा ड्राइंग बनाया था, बच्चे वाली ड्राइंग ऑन माई हैंड, एंड इट सपोजिटली टर्न आउट टू बी सो ब्यूटिफुल. टुमारो मॉर्निंग मेरा पता नहीं कैसा स्केड्यूल है, मैं क्या करूँगी कल. मैंने डिसाइड नहीं किया. टुडे आई वाज सिटिंग डाउन, शुड आई वॉश माई हेयर, शुडंट आई वॉश माई हेयर, शुड आई गो. आई सेड नहीं शांति, मुझे रूटीन से भी कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मैं उस दिन बहुत जल्दी गई थी. व्हेन आई डिड दैट डॉन वाला सेशन, डॉन आर, मॉर्निंग में 6:10 को पहुंची थी मैं वहाँ पे. 6:15. इट वॉज़ टू अर्ली. तो बैक टू बैक मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग किया था पॉन्ड पार्क में. फिर वो नज़र में आ जाती हूँ, तो मुझे आई डोंट वांट टू बी टू अवेलेबल. लाइक इतना बड़ा सेशन करने के बाद 1 या 2-3 दिन का ब्रेक रखना अच्छी बात होती है. अभी ऑन संडे ऑल्सो ना, इफ़ आई गो वेरी अर्ली. जल्दी जाऊँगी मैं. एक्चुअली आई वांट टू ईट साबूदाना खिचड़ी फ्रॉम 7 हिल्स कैफेटेरिया. वो करूँगी मैं कल. दैट विल बी मच बेटर. या तो पुलिस कैंप का पोहा खाऊंगी. सीरियसली. सिर्फ पोहा खाने जाऊंगी वहाँ पे मैं. वहाँ पे फ्रेश बैच बनता है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया. दैट इज़ अ गुड आइडिया.
लाइफ में वैरायटी रखो. When people say we are alone, we don't know what to do. See, you don't have to be rich, super rich. इतने पैसे हो कि खा पी के हम लोग give us today our daily bread, bills are paid, we are doing our own bit. आई एम सो इंडिपेंडेंट ना. मैं सोचती हूँ जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी के साथ कर सकती हूँ मैं खुद ही करती हूँ वो चीज़ें. खुद की चीज़ें करती हूँ, खुद की इंडिपेंडेंट थिंकर हूँ, खुद की चीज़ें करती हूँ. इट्स नॉट दैट कि मेरे लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड होगा या कोई भी होगा तो आई टेल हिम कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मैं तो जा रही हूँ भाई. चल के ही सही मैं जाऊँगी. आई टू दैट प्लेस. आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन. डेफिनेटली you don't become absolutely like a brainless person when you're in a relationship. और एक पाजी का ढाबा है, मैं ये पाजी से बातें करी थी. ही सिंह हाँ मैं तो वहाँ पे ही खाना खाता था जब मेरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस था. वहाँ पे होटल है ना. देन ही टोल्ड मी कि उसका छोटा सा ये था. देन उसने पक्का वो खरीद लिया, पक्का बना लिया. ही गिव मी एन एंटायर हिस्ट्री ऑफ दैट another dhaba which is in कदमवाड़ी, मरुल पाइपलाइन. समडे आई विल टेक अ शूट वहाँ का वो खाने का. पराठा, लस्सी, छाछ, उसका भी है चाइनीज़, वो सारी चीज़ें जो भी ये वाले ढाबे में मिलता है ना वो वाले ढाबे में भी मिलता है. इसलिए मैं भी वहाँ से ही खाना खाता था. दैट्स द थिंग अबाउट पाजी. ही इज़ वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड. जब वो बातें करते हैं ना एकदम दिल खोल के बातें करते हैं. So naturally since he's from this vicinity and this area, उनको चप्पे चप्पे की एक चीज़ की उसको नॉलेज है. he knows almost everything, not only from here, from the town side, because transport business भी था तो he is quite knowledgeable and he is quite like उनको कोई भी लोकेशन बता दो, he will tell you हाँ वो जगह पे ये था ना, ये जगह पे ये, हाँ पहले वैसे था, पहले ऐसे था. he will tell me कि नहीं यहाँ का खाना वैसे है या वहाँ का खाना वैसा है. वहाँ पे ना एक बाकड़ा लगता था ट्रक अपने मुस्लिम्स का ही था वो. कबाब और वो बिरयानी और अच्छा खासा क्राउड, बहुत रौनक लगी रहती थी. आई डोंट नो, इट सीम्स एम्बुलेंस आ गई थी और वो चोक हो रहा था तो उनको हटा दिया. वरना वहाँ पे काफ़ी वो कंतिलेश्वरी के पास ही वो वहाँ पे हो जाता था. वहाँ पे वो ट्रक लगती थी एवरी इवनिंग. और वहाँ पे उन लोग ओपन फायर में बनाते ना कबाब्स और ये फ्राइड आइटम्स वगैरह. एक्चुअली इट इज़ अ सेफ्टी हज़ार्ड ऑल्सो, लेकिन खाने के लिए वहाँ पे इतनी रश उसका कबाब्स और वो सारे चीज़ें खरीदने के लिए वैल्यू फॉर मनी रहता है ना. इतना रश. उन्होंने मुझे कहा कि इनके 5 ट्रक्स है एक या तो जब बंद हो गया तो इट सीम्स ही वाज रिक्वेस्टिंग पाजी की तुम आपकी पहचान में है. तो ही टोल्ड हिम कि लेट्स सी इफ आई कैन डू समथिंग बिकॉज ही हैज़ ऑल द पहचान. गर्मी में खाना उतना अच्छा टेस्ट नहीं करता है सीरियसली. यू कैन स्पाइसी अवॉइड ही करना चाहिए, मसाला ज़्यादा लगता है. विंटर सीजन में वो शेफ्स के भी मूड अच्छे रहते हैं. दे आर ऑल्सो प्लेजेंट, वो भी इंजॉय करते हैं खाना बनाने के लिए. इनफैक्ट उनका एक कुक या हेल्पर नहीं था तो वो खुद ही जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं ना वो ही स्टैंड्स विद हिज कुक एंड ही वो भी डिशेस बनाते हैं. नाउअडेज उनके भाई भी होते हैं. इनको काफ़ी टेकअवेज, इनका कॉन्स्टेंटली टेकअवे का बिजनेस. फुटफॉल्स तो होते ही है लेकिन इनका इतना. और मुझे अच्छा लगता है जब आदमी लोग आते हैं ना पूरी थाली एकदम साफ़ करके खाते हैं. नॉट ओनली दैट, और ज़्यादा खाते हैं. मतलब उनका खाना इतना अच्छा रहता है कि पीपल वांट टू ईट इट मोर एंड मोर. मज़े से खाते हैं, वेस्ट नहीं होता है वेरी रेयरली. टेकअवेज कितना टेकअवेज. तो आई ऑलवेज आस्किंग पाजी क्या रेकमेंड करूँ. मैंने बोला नहीं, गर्मी के तली हुई चीज़ें तो नो वेज. हमें लगता है कि हम ठंडा पानी पी के हमारी प्यास बुझ जाएगी. नहीं, नो वेज.
मटके का पानी। मेरे घर में स्पेस नहीं है, नहीं तो अभी स्पेस बना के मुझे एक मटका लाना पड़ेगा लगता है। मिट्टी का बर्तन का पानी पीने से क्या ठंडास होती है उसके अंदर, प्यास भी बुझ जाती है, एंड वो बहुत ही नेचुरल रहता है। सीरियसली आई सॉ द डिफरेंस डाउन साउथ में। डाउन साउथ में खाना भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत सारा खाना खाते हैं हम लोग, नॉनवेज होता है, और वहाँ का पानी अच्छा रहता है, इसलिए बाल नेचुरली ब्यूटीफुल हो जाते हैं। और वहाँ तो मैं दिन में 4 बार नहा, आई यूज टू टेक बाथ 4 times इन अ डे, 5 times इन अ डे। पानी इतना फ्रेश इतना अच्छा। डैरिल सर की जो माँ थी ना, शी वॉज़ वेरी मच स्टॉन्च कैथलिक, मतलब वो इतना ज़्यादा प्रेयर करती थी। इट सीम्स तभी उस ज़माने में ये चर्च में 5 बजे को, वो सेंट जॉन चर्च में 5 बजे को प्रेयर होते थे। तो इट सीम्स इसकी मॉम शी टू अटेंड एट 5 o'clock मास इन द मॉर्निंग्स। एंड एक बार वो बाई मिस्टेक सुबह जल्दी उठी एंड शी वेंट टू द चर्च, इट मस्ट बी अराउंड 3 o'clock और समथिंग, शी डिड नॉट सी द टाइम। इट सीम्स शी एक्चुअली वॉज टॉकिंग टू one lady came and sat next to her and talked to her, and then she said she just disappeared. So these things are real, paranormal things are real. So जब सर ने मुझे कहा ना कि ये चीज़ें, तो मैंने बोला yes, these things are real, these things are real. एंड अगर तुम रात को भटकते रहोगे तो तुम्हें ये रात में डेफिनेटली यू विल एनकाउंटर सच थिंग्स। बट सिंस शी वॉज सच अ लेडी ऑफ ग्रेट फेथ, उसको वो फील नहीं हुआ, उसको बाद में फील हुआ जब वो घर पहुंची तभी। एंड नॉट ओनली दैट, मतलब जब when there was death, it seems she could actually feel it and sense it that कि नेबर मरने वाला है। She saying I have seen the grim reaper जो होते हैं ना, वो एंजल ऑफ डेथ, मैंने देखा नहीं, मैंने सेंस किया मेरे घर के अंदर when my mom was passing by. क्योंकि उसके एक दिन पहले, हाँ, I could sense it. You can sense death. You can sense death. You can sense it. So since she's so much into prayers, it seems she used to wake up in the morning and मतलब वो जल्दी उठती थी, वो 4:30 बजे उठ के प्रेयर करने लगती थी। जैसे she will just wake up and she'll start doing her prayers. And he would say कि my father was totally opposite. He never went to the church. But he was like a good person, like very helpful. He's saying everybody knew him and everybody used to come for help. He has never said no. मतलब इनके कर्मा अच्छे थे. While as the mother was doing a lot of prayers, the father was more of that कर्म योगी. So हमें भी अपने लाइफ में हमें कर्म योगी बनना है। हम जितने लोगों की मदद करते हैं, हम जितने लोगों के साथ अच्छे बनते हैं, तो it reflects back to us. Sir told me you did not come today. I said no sir, I came at 9 o'clock today, 9:30 in fact, because 9 o'clock and that too for 10 minutes, because उनका जो खिड़की है ना, वो अपनी खिड़की से स्मॉल गार्डन में डायरेक्टली देख सकते थे। तो आई हैड कॉल्ड हिम अप, सेड विंडो में से अगर देखते हैं तो आई केम। ही सेड नहीं, जो हमारा ओरिजिनल गैंग है ना, वो पूछ रहा था, नहीं मैडम नहीं आई आज। सो बिकॉज यू सी द सेम फेसेस, इफ़ यू गो टू अ पर्टिकुलर टाइमिंग, जैसे मेरा 7:30 होता था स्मॉल गार्डन में, सेम फेसेस आई विल सी, सेम पीपल। ही सेइंग शांति, यू विल नॉट बिलीव, पीपल whom you are not talking to are also looking forward to see you, because you are a regular face. Those whom you are not talking to and those who are not talking to you but who are regular are also looking out for you. I said this happens. वो पॉन्ड पार्क में देखो, ये जो मुझे 6 महीने पहले मैं इनके हैप्पी बर्थडे के ट्रीट में गई थी, मैं उनको सिर्फ हार्डली 1 या 2 बार जानती हूँ। इन्होंने खुद मुझे बोला पॉन्ड पार्क योर टाइमिंग्स हैव चेंज्ड करके। सो इफ़ यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पीपल विल नो इट। वो लिविंग लेजेंड 94 या 91, उनको याद रहता, आप 3 दिन नहीं आए थे ना,
ही स्टेज इन भवानी नगर, श्रीधर, उनका नाम श्रीधर जोशी है। ही स्टेज इन, वो भवानी नगर से चल के जाते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। वो चर्च से, हाँ, वो चलते चलते मुझे लगता है 15-20 मिनट्स लगते होंगे उनको, लेकिन ही स्टेज एट भवानी नगर। सो भवानी नगर से वो आरे जाने के लिए सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं, लेस देन 10 मिनट्स या 10 मिनट्स। तो वो वहाँ पे रहते हैं, बिकॉज आई सॉ हिम इन द मॉर्निंग when I was coming back from नाना नानी पार्क। वो चल सकते हैं इतना, 91 ईयर ओल्ड होके यहाँ से, क्या भवानी नगर में नाना नानी पार्क नहीं है, वो वहाँ बैठ सकते हैं, बट ही स्टिल गोज टू आरे। क्यों? उनकी हेल्थ अच्छी है, उसके वजह से, चलने के वजह से, ब्लड सर्कुलेशन, सनलाइट, फ्रेश एयर। अगर वो 91 ईयर ओल्ड चल सकते तो बाकी के लोग क्यों नहीं? देन आई यूज टू सी दिस, जिनको ये हो गया था ना, स्ट्रोक हो गया था, एक आदमी है, मैं किसी दिन फोटो, he'll always have a big bright smile on his face. He's like, hello, good morning madam. Before he could not put even shoes and chappals, he used to walk bare feet. वो काटी लेके चलता था. He's a young person, maybe in his 40s. चल के I think he goes to the park, but he starts at 7:30. So I always meet him at that big boss gym. वहाँ पे आसपास वहीं पे मिलती हूँ मैं उसको, every single day में मिलती हूँ. तो he'll always say, hi madam, hello madam, good morning madam, with a big bright. उसको स्ट्रोक हुआ है, वो काटी लेके चल रहा है. एंड नाउ आई हैव सीन हिम वेयरिंग चप्पल्स, एंड धीरे धीरे मैंने उसको देखा चप्पल पहनते हुए, कभी वो शूज़ पहन के चल रहा है. एंड ही कैन वॉक प्रॉपरली नाउ, ऑलमोस्ट प्रॉपरली. पहले वो नहीं चल पाता था, बट ही यूज्ड टू टेक दैट स्टिक एंड वॉक. बैठता था, उठता था, चलता था. इफ़ दैट मैन कैन वॉक, जिसको स्ट्रोक हो चुका है, आधी बॉडी एकदम ऐसे हेल्पलेस बन चुकी है, एंड लुक एट हिज द पावर ऑफ वॉकिंग, पीपल अंडर एस्टिमेट. इसलिए वॉट एवर इज़ देयर, डोंट ऑर्डर, गो टू द ग्रोसरी स्टोर, गो टू द सुपरमार्केट, स्टार्ट बाइंग योर ओन वेजिटेबल्स, गो वॉक. नहीं, घर में पड़े रहते हैं लोग. हाउ विल यू बिकम हेल्दी? स्टॉप टॉचिंग इन योर फेस विथ टू मेनी क्रीम्स. मुझे कोई बोलता ना सनब्लॉक, मैंने बोला भांडी, मैंने ज़िंदगी में सनब्लॉक एक ही बार, व्हेन आई हैड गॉन टू द गल्फ, दैट वाज इन 22 years ago, in the month of March, May, then I went back, June, when I had started my work, it used to be so heaty. और वहाँ पे ब्रेक शिफ्ट होती थी, तो यू हैड टू एंड वंस आई केम वॉकिंग, आई लिटरली गॉट अ, तभी मैं बहुत सारा सनस्क्रीन लगाती थी. एंड आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ दीज फ्रोजन फूड, योगर्ट और जो आइसक्रीम, मैं खाना ही नहीं खाती थी. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं ज़िंदगी में सनस्क्रीन मैंने कभी लगाया नहीं. उसी टाइम पे वो बॉटल लाई थी, वही मैंने यूज़ की, नहीं यूज़ की, किसी और को दे दिया मैंने, सीरियसली. देन आई स्टार्टेड, आई डोंट नो वेदर आई गॉट अ ड्रॉप और आई यूज्ड टू नॉट गो बैक होम. मुझे याद नहीं मैंने कैसे मैनेज किया वो दिन. या छाता लेके जाती थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई डोंट बिलीव इन सनस्क्रीन्स. आइदर तुम लोग उस धूप में उस टाइम पे मत जाओ, या छाता लेके जाओ. अवॉइड दोज टाइमिंग्स. जो भी काम करना है 10 बजे के पहले करो या 5 बजे के बाद करो, अगर हो सकता है तो. वरना धूप में पागल की तरह टहलने का कोई मतलब नहीं बनता है. रियली. ऐसे नहीं कि मैं काली नहीं बनती हूँ. जब मैं धूप में, उस दिन धूप में घूमी थी मैं, 10-10 किलोमीटर चली थी लाइक अ मेंटल उस दिन. हाउ मेनी किलोमीटर्स आई वॉकड फ्रॉम वेयर टू वेयर, आर टू मरोल पाइपलाइन, दैट इज़ एयरपोर्ट रोड, लाइक अ मेंटल, back and forth. That's almost 4 kilometers from RA to Marol pipeline will be around more than 4-5 kilometers. वो चली थी मैं धूप में. मतलब यहाँ पे जल्दी धूप होती है ना, 8:30-9 बजे, बिकॉज इट वॉज समर सीजन. वरना यू कैन गो वॉकिंग. Once in a while, if it is okay, it's okay. But now it is 37 degrees. It doesn't make sense. 32 degrees doesn't make sense. इसलिए जब मैं मॉर्निंग में भी जाती हूँ ना, it is when it's too heaty, I really become crazy.
इसलिए आई वेंट अर्ली एंड अर्ली, जितना मैं जल्दी जा सकूँ, सो दैट बाय आई एम होम बाय 8:30. 8 by 8:30 it is fine if I reach home. I become kadak mala, my feet and all. Only I have to improve my muscles over here, my hands. मेरे हाथ के है ना, मैं आर्म्स के वो थोड़े से टफ बनाने हैं, थोड़ा टोनिंग करना है उसको मुझे बस. बट अदरवाइज यस, आई डोंट अप्लाई एनीथिंग टू माई फेस, नथिंग. कभी कभी मैं ऑरेंज खाते खाते ना, यू हैव टू वॉश योर ऑरेंज केयरफुली. यू आर ईटिंग द ऑरेंज, और वो जो रिड्स होते हैं ना, मैं या तो अपने स्किन को लगाती हूँ, या तो मैं अपने फेस को कभी कभी लगाती हूँ, याद आया तो.